All right, we shall begin. Okay, so हम जब foot की बात करते हैं, when we talk about the foot, what exactly do we mean? What is a foot? And what are we actually dealing with? How many aspects, how many structures are we dealing with? Foot के अंदर ऐसा क्या क्या होता है? पहले वो जानते हैं, उसके बाद फिर उसके दर्दों के बारे में जानेंगे. So I'm going to try and talk in both the languages, English as well as Hindi, so that most of the people are able to understand. Okay? All right. So when we talk about foot, foot has got 28 bones, 33 joints. There are 112 ligaments, 13 extrinsic and 21 intrinsic muscles. Huge collection, right? Hi, Shafana. Nice to see you after such a long time. So foot has got a lot of things. Foot के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. Bones भी हैं, muscles भी हैं, ligaments भी हैं. और उसके अलावा connective tissue और उनकी alignment जिस तरीके से होती है, that is also very important. Let's just try and see a little bit. Hi, Saira. Nice to see you after such a long time. So when we talk about the foot or the foot bones, there are 28 bones present and they are compact, they are aligned, they are joined together, making joints that sometimes some are moving very well, some are moving in limitation, and some are not moving at all. Okay, so अगर हम पैर की बात करें, let's understand if this is the foot. The front part of the foot is very mobile. बहुत toes वगैरह सब अच्छे से move कर सकते हैं सबके. तो that's the mobile part, also called as forefoot. Then we have the midfoot. Midfoot में कम movement होती है. जैसे आप यहाँ पे ये bones देख पा रहे हैं, lateral cuneiform, cuboid, intermediate cuboid. Hi Sadak Parmanan, welcome. So यहाँ पे कम movement होती है, and then comes talus, calcaneus. They all form the ankle joint, the tarsals and all. तो इनके अंदर movement फिर भी मिल जाती है आपको, ankle joint के अंदर फिर भी movement मिल जाती है. फुट की कहीं मूवमेंट होने का, कहीं मूवमेंट नहीं होने का कारण है. क्या कारण है? जब आप मिड फुट की बात करते हो और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम द इंटायर बॉडी ऑन द इंटायर फुट, स्पेशली व्हेन यू आर स्टैंडिंग, व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर रनिंग, तो अगर आपका बेस जो ये मिड सेक्शन है, अगर इसके अंदर अगर मूवमेंट मिल जाएगी तो कहीं पे भी रुकेगा नहीं, पूरा फ्लिप आउट कर जाएगा. राइट? सो इसलिए कहीं नॉन मोबिलिटी देने का कारण ही यही था कि फ्रंट, ताकि आप अच्छे से ग्राउंड क्लियर कर सके, और हील, ताकि कि आप अच्छे से स्ट्राइक कर सके ग्राउंड को, इसलिए वहां मोबिलिटी दी. बट जहां मोबिलिटी नहीं दी, वहां एक्सपेक्टेड था कि आप अच्छे से ग्राउंड को कांटेक्ट करें और उसको पकड़ करके रखें. राइट? द मिड फुट had to grab the floor so that you can load your foot nicely on the ground. Now, when the ground reaction forces act on the foot, then your foot needs to have immense amount or the same amount of forces exerted against the ground reaction force so that you can balance yourself. अगर आपका ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जो धरती में से जो फोर्स आ रहा है और आपका खुद का वेट का जो फोर्स है, अगर ये दोनों अगर कंबाइन नहीं करेगा, अगर ये दोनों अगर एक दूसरे को अपोज नहीं करेगा, तो या तो आप टॉपल आउट कर जाएंगे, या तो आप चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा था ही नहीं तो इसने आपको खींचा ही नहीं. राइट? तो दोनों बहुत जरूरी है. एक आपका फुट का कोऑर्डिनेशन, दूसरा आपका ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस. गुड. ऑल राइट. सो हमने समझा कि फुट के अंदर क्या क्या होता है, हमने समझा कि फुट के 3 सेक्शंस क्या होते हैं. अब हम समझेंगे कि फुट की फंक्शनैलिटी क्या है. ओके, द वेरी फर्स्ट, और सब गेस कर सकते हैं, इट सपोर्ट्स द एंटायर बॉडी. तो हमारी पूरी बॉडी को किस तरीके से हमको ग्राउंड के ऊपर हैंडल करना है, वॉकिंग के टाइम पे हैंडल करना है, जो कुछ भी करना है, वो सब हमारे लिए फुट करता है. How the weight is getting distributed on the foot, and then how the foot is leading forward. So it supports the entire body. It helps you be mobile.
आपको चलना है, आपको दौड़ना है, आपको कुछ कुछ मर्जी करना है, पैरों की जरूरत तो है ही ना, फुट नहीं होगा तो कैसे चलेंगे? सो any kind of movement requires foot because that's the contact with the ground so that you can distribute good weight on the floor, on the ground. Hi Rahul Agrawal, nice to see you. Next is absorption. What do you mean by shock absorption? जब आप चल रहे होते हैं on the ground, तब कुछ तो बॉडी का एक्सेसिव प्रेशर या ग्राउंड पे कभी ज्यादा प्रेशर लगा दिया या कभी जोर से हिट करके चल दिया. कभी कभी होता है that you did not think about it and there was a lot of force or there was uncontrolled force. Now how will you deal with it? Shock absorption in the foot, जहां पे आपका फुट सोल है, वहां पे इतनी पैडिंग दी गई है आपको कि आप अपना बॉडी वेट को अच्छे से हैंडल कर सके विदाउट गेटिंग द इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन योर बोन्स, without getting the impact directly going up to your body. So, shock absorption. Then there is ground reaction force transference. So, आप जितना, जैसे हमने अभी बात किया, ग्राउंड का भी एक फोर्स आ रहा है जो आपकी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट होता है, आपका भी एक फोर्स आ रहा है जो ग्राउंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग काउंटर एक्ट नहीं करवाएंगे तो आप ग्राउंड पे चल नहीं सकते. सो फुट एक्चुअली डील्स विद दैट. एंड अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की मैल अलाइनमेंट है, किसी भी तरीके का कुछ भी टेढ़े हुए पे हैं, इफ यूर ट्विस्टेड, इफ यूर टर्न्ड, इफ यूर मतलब एक लेग पे ज्यादा वजन लेते हैं, एक लेग पे कम वजन लेते हैं, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्पेंसेशंस आर हैंडल्ड बाय द फुट. यस, foot does a lot of work. That's why it has got to be taken care of. बहुत सारे लोग पेडिक्योर कराने जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने पैरों को रात में मसाज करके सोते हैं या उसके ऊपर कुछ अच्छा सा क्रीम लगाते हैं. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग गुड थिक फुट क्रीम्स और ऑयल लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं फॉर मैनेजिंग देयर फुट. हाय अजय प्रजापति, नाइस टू सी यू. So there are many things that people try and do in order to preserve and keep their feet healthy and active, and that is very important. So रात को सोने से पहले या कुछ बहुत strenuous दिन रहा आपका, वो सब टाइम पे अगर आप अपने पैरों का ख्याल रखेंगे, then the feet will serve you more. I've made a lot of videos on YouTube on my channel that you can go and access through. आप उसको जाकर के देखिए, आप उसको समझिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और I am 100% sure that it will benefit you. For example, I made one video जिसके अंदर अगर आप घर पे कभी भी ऑफिस से या स्ट्रेसफुल डे से या किसी लॉन्ग ट्रैवल से आप वापस आते हैं, डिप योर फीट इन कोल्ड वाटर, आइसी कोल्ड वाटर. थोड़ा नॉर्मल पानी लीजिए, थोड़ा आइस डालिए उसमें, थोड़ा ठंडा होने दो, पैर उसके अंदर डालो. 7 से 10 मिनट भी अगर आप उसके अंदर पैर डाल करके बैठेंगे, आपको ये डेफिनेटली फील होगा कि आपका सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन, सारी थकान सब हट गई है. यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड एंड योर फुट विल थैंक यू एंड देन यू कैन थैंक मी, राइट? देयर आर many other things that you can do for your foot, but we will first understand what exactly does foot go through and why does the foot go through. उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि चलना या गेट का मतलब क्या होता है. आई होप आप सब ये देख पा रहे हैं. Phases of walking. So heel strike, early foot flat, late foot flat, toe off, and then these are part of stance phase, and then there is swing phase. So अगर हम इन दो पार्ट्स को अगर हम कंसंट्रेट करें, तो जब पैर ग्राउंड के साथ जब कांटेक्ट में आ रहा है उसको बोलते हैं स्टैंस फेज. जब हवा में है तो उसको बोलते हैं स्विंग फेज. ठीक, गेट का मतलब होता है चलना, फेजेस ऑफ वॉकिंग. तो जब हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट फुट को मेजरली दिखा रखा है इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द गेट. जब हम हील स्ट्राइक की बात करते हैं तो वेट आना शुरू हुआ है. अभी ये एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं आता. सबसे पहले आपका पैर सुपिनेट करेगा, मतलब बाहर से अंदर की तरफ ऐसे घूमेगा.
तब जाकर के आपका हील जो होता है वो स्ट्राइक करता है। तो पैर ऐसे घूम करके फिर अंदर की तरफ ऐसे आकर के लैंड करता है। ठीक है। देन आपका फुट प्रोनेट होना मतलब अंदर से बाहर की तरफ घूमना शुरू होता है और फ्लैट होता जाता है। सो रोटेशन भी हो रही है, कांटेक्ट भी आ रहा है और उसके बाद लैंडिंग हो रही है। समझ रहे हैं आप कि कितना आपके एंकल को, कितना आपके सब टाला जॉइंट जो एंकल के नीचे जो जॉइंट होता है उसको कितना मूवमेंट करना पड़ रहा है इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव कांटेक्ट विद द ग्राउंड। But it is important and you need to have proper full mobility in your ankle, in your foot so that you can walk properly. So ankle free होना जरूरी है ताकि वो पहले अंदर की तरफ घूमे, फिर heel strike हो, फिर weight distribution के लिए बाहर की तरफ घूमे और full flat पैर रखा जाए. Then after the full flat contact is there with the ground, then comes heel off. So अगर आपके toe और जो मेटाटार्सल्स होते हैं, जो बॉल ऑफ द टोज होता है, एक तो टो का पार्ट है, दूसरा जो राउंड राउंड जो पार्ट होता है जो टो के जस्ट पहले होता है उसको बोलते हैं बॉल ऑफ द टोज। अगर उसके और टोज के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हील ऑफ होने में दिक्कत होगी या एड़ी उठने में दिक्कत होगी। और उसके बाद टो ऑफ, अगर आपका बिग टो, ग्रेट टो, अगर उसके अंदर अगर प्रॉपर मोबिलिटी नहीं है तो टो ऑफ होने में दिक्कत होगी। अभी होता क्या है, कुछ लोग होते हैं जिनका जो ग्रेट टो होता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है या उसके अंदर थोड़ा टाइटनेस आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। हाय गौरव। सो उसकी वजह से there is always problem in order to either strike the heel, land the foot, or else walk away into the swing phase. Hi Mohsen, nice to see you after a very long time. I hope Australia is good. All right people. So हमने यहाँ पे सीखा phases of walking and it is very important कि हम ना कि सिर्फ पैर एंकल का मुड़ना बट की रोटेशन भी समझें, क्योंकि दोनों चीजें बहुत जरूरी है in order for you to walk properly. Now, sometimes you might not be able to be self-aware about all of these things. That's why you require a physiotherapist or a movement expert in order to observe you while you are walking. Yeah. So एक्टिव मूवमेंट जब आप कर रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे होते हैं, उस टाइम पे यूजुअली आपके थेरेपिस्ट या आपके मूवमेंट एनालिस्ट आपको ऑब्जर्व करते हैं और उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है या ये पता लगता है कि उनके थ्रू कि आपका कौन सा फेज ऑफ वॉकिंग ठीक नहीं है या कौन सा एस्पेक्ट है आपकी वॉकिंग का जो ठीक नहीं है, फिर उसके ऊपर वो काम करते हैं। कभी कभी आपसे एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि वो जॉइंट एक्टिवली खुले, कभी कभी वो खुद करते हैं विच इज विद मैनुअल थेरेपी या विद रिलीजेस या विद सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट लाइक अल्ट्रासाउंड करते हैं कुछ लोग प्रेफर, कुछ लोग लेजर प्रेफर करते हैं, कुछ लोग शॉक वेव प्रेफर करते हैं। बट there are different studies that have produced different results for various conditions that are there of the foot. तो किसी भी हाल में ऐसा नहीं बोला जा सकता कि कोई एक थेरेपी गलत है या कोई एक चीज गलत है या कोई एक चीज सही है और उसको हाउ वी से इट इन इंडिया रामबाण इलाज बना दें कि हर चीज में वही कर दें, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर फुट. Second is your responsibility again to find out if there is a problem, then go to an expert. Find out who is really into functional analysis या आपके मूवमेंट का एनालिसिस अच्छा करने वाला आपके आसपास कौन है, उनके पास जाएं, उनके पास जाकर के अपने आप को चेकअप कराएं और उनसे पता लगवाएं कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, क्योंकि खुद से तो सॉल्व हो नहीं रही, तो एक्सपर्ट के पास जाना अच्छी बात है। आई डिसलाइक और आई डिसअप्रूव जब लोग मालिश वालों के पास या बोन सेटर्स के पास, हड्डी चटकाने वालों के पास जाते हैं और क्योंकि पैर मुड़ नहीं रहा था ठीक से तो ऐसे खटाक खटाक करके कुछ मैनिपुलेट करवाते हैं और उसके बाद दे फील के सब ठीक हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो
सकता है कि उसने कुछ टेंडन रप्चर कर दिया हो या लिगामेंट कुछ रप्चर कर दिया, तो आपको फॉर द टाइमिंग आपको बहुत अच्छी मोबिलिटी मिल जाती है। कभी कभी इमीडिएट इम्पैक्ट होता है कि बहुत दर्द हो गया वो करवाने से ही, बट अगर आप लकी हैं और अगर आपका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है, कुछ इंजरी नहीं हुआ है, तो इसको वन गुड इंसिडेंट सोच करके और आगे बढ़िए और दोबारा मत जाइए, क्योंकि उनके पास भले ही एक्सपीरियंस हो कि एक जॉइंट को कैसे हैंडल करना है, बट उनके पास समझ नहीं है। तो अच्छी बात है कि आप बहुत सारी चीजें ट्राई करें, बट लिमिट पता होनी चाहिए कि कहाँ रुकना है। अगर आप रुके नहीं तो आप खुद ही को इंजर करेंगे, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. So I am a strong believer of that, and I will recommend that to you too, that you make sure that you are not going to quacks. All right. Now let's move to the next segment. We are talking about arches. So arches क्या होते हैं? फुट के अंदर हमारे पास दो तरीके के आर्चेस होते हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, जो आप ग्रीन कलर का जो ये लाइन देख रहे हैं फुट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. देन देयर इज लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, एंड देन देयर इज ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल आर्च. द ब्लू वन इज द ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल आर्च. अभी इनका मतलब क्या है? ये बेसिकली बोन की अरेंजमेंट्स है जो कि सॉफ्ट टिश्यू, प्लांटार फैशिया. प्लांटार फेशियाइटिस आपने सुना होगा, क्योंकि वो बहुत सारे डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं कि ये आपको दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से आप हील नहीं रख पा रहे हो ग्राउंड के ऊपर अच्छे से, और जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, या हील स्पर हो गया है जिसकी वजह से आपको शार्प पेन है हील में, और वो भी प्लांटार फेशिया के टाइटनेस की वजह से होता है, उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स की वजह से होता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले फुट का क्या मैकेनिक्स है. तो जिस तरीके से हमारी बोन्स अलाइंड है, उनको पकड़ के रखने के लिए भी तो वहां पे, नहीं तो सब छूट जाएगा ना. ऐसे ऐसे पकड़ के रखने के लिए बोन की अरेंजमेंट को कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज मतलब एक साथ जोड़ने वाला सॉफ्ट टिश्यू, जो कि बहुत आसानी से ऐसे आप खींच नहीं सकते, और उसका रिकॉइल करने का भी बहुत ज्यादा अच्छा चांस नहीं है. बहुत सारे तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बट हम जो बात कर रहे हैं प्लांटार फैशिया की, फैशिया अच्छे से खिंच भी जाता है और वो अच्छे से रिलैक्स भी हो पाता है, बट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, तो हम प्लांटार फैशिया की जहां बात करते हैं, प्लांटार फैशिया, अगर आपका हाई आर्च है तो आपका प्लांटार फैशिया ऑलरेडी इज वेरी टाइट और इज गुड ऑन इट्स टेंशन. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब आर्चेस डेवलप होते हैं तभी आपका जो फोर्स है फुट के ऊपर वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है. अंदर अगर आप पैर का अंदर वाला पार्ट देखेंगे तो वो हमेशा एक ऐसे कर्व की तरह उठा हुआ होगा, उभरा हुआ होगा. दैट इज अ गुड थिंग टू हैव. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू व्हाट वी अंडरस्टैंड एज रीजंस व्हाई पीपल डेवलप फुट पेन. ठीक है, मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊंगी, कुछ डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस हैं और थोड़ा थोड़ा बताऊंगी उनके बारे में. आप सिर्फ सबसे पहले इमेज देखिए एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इट. सो सबसे पहला फ्रॉम द लेफ्ट टॉप इज एक्यूलीज टेंडनाइटिस. अभी पेन यूजुअली आपको हील के पीछे, हील के ऊपर जो एक्यूलीज टेंडन जो होता है, जहां पे जो वॉरियर था एक्यूलीज, उसको एरो लगा था और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, इसीलिए इस टेंडन का नाम एक्यूलीज पड़ा. नाइस स्टोरी, राइट? सो यहाँ पे अगर आपको रनिंग की वजह से, जंपिंग की वजह से, या चलने के टाइम पे थोड़ा स्ट्रेन आपने दिया, तो उसकी वजह से अगर आपको कोई ओवर यूज की इंजरी हुई है तो ये डेवलप हो सकता है. तो आइडियली व्हेन यू हैव दिस, गो टू अ स्पेशलिस्ट. बट अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं तो इसको रेस्ट दीजिए, इसको आइस करिए, इसको बैंडेजिंग करिए और इसको एलिवेट करके रखिए. ठीक है, इसको बोलते हैं राइस ट्रीटमेंट, राइस रिहैबिलिटेशन. रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन. ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो उससे 2 से 3 दिन स्टार्टिंग में आपको ये करना जरूरी होता है, ताकि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग
पेन इसका थोड़ा थोड़ा सबसाइड हो जाए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आप लोड बेयरिंग या वॉकिंग स्टार्ट करते हैं, एंड देन स्लोली दैट कैन इंक्रीज। बट अगर ये ठीक नहीं होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम है, एंड प्लीज गो टू अ स्पेशलिस्ट। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज बनियंस। बनियंस जो होते हैं, दे आर जो आपका मेटाटार्सल है, जो हमने बात किया था टोज के जस्ट पहले, जो बॉल ऑफ द टोज होता है उसका और टो का जो जॉइंट होता है, जब वो ज्यादा ऐसे मुड़ जाता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग फुटवेयर, sometimes it's also a little bit of it is because of genetic issues, but most of the time it is because या तो स्ट्रेन ऐसा पड़ा है आपको, या आप शू जो पहनते हैं वो इतना रॉन्ग प्रेशर डाल रहा है कि आपका जो जॉइंट है वो नॉट नॉर्मली, एबनॉर्मली मुड़ गया है। और ये कॉन्स्टेंटली रहता है क्योंकि हम शू ऐसा पहनते हैं। जस्ट सो दैट यू कैन सी व्हाट आई मीन, अगर आप देख पा रहे हो, ये भी बहुत ही ज्यादा कुछ स्पेसिफिक किसी शू के बारे में बात नहीं कर रही, बट अगर हम शू का टॉप का पार्ट अगर हम हटाएंगे तो द लेफ्ट इमेज विच हैज द रेड, इफ यू कैन सी टोज एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, कंप्रेस्ड हैं, और सांस लेने की तक जगह नहीं है। ऑन द अदर साइड इफ यू सी टोज आर हैप्पी, दे आर सेपरेटेड, दे आर having full movement, or they can do full movement whenever they feel like. You'll be surprised कि कितनी सारी हमारी फुट के पेन के जो इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ शू की वजह से है। वन ऑफ देम बीइंग बनियंस। गोइंग बैक टू द सेम स्लाइड, कैलसेस। कैलसेस जो होते हैं ये थिकनिंग होती है, मतलब स्किन जो होती है हमारे फुट सोल की, उसकी थिकनिंग हो जाती है, अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, थैंक्स टू इल फिटेड शूज। अगर शू ज्यादा टाइट होगा या ज्यादा लूज होगा, या उसका सोल अच्छा नहीं होगा, आपका पैर कंफर्टेबल नहीं होगा, तो ये जरूर होगा। क्लॉ, क्लॉइंग ऑफ द टो। क्लॉइंग ऑफ द टो के अंदर जो आपका जो क्लोजेस्ट फैलिंग्स या टो का जो सबसे पास वाला जो बोन होता है, उसके और नेक्स्ट बोन के बीच का जो जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वो जब रिड्यूस हो जाता है उसको बोलते हैं क्लॉइंग ऑफ द टो। और ये क्यों होता है? एनी गेसेस? इल फिटेड शूज। हाय Mridulavy, nice to see you after such a long time. So, clawing of the toes again because of ill-fitted shoes. No flexibility. Then corns. Corns is a painful skin की thickening हो जाना। कभी कभी उसके अंदर थोड़ा कीलॉइड या कुछ ऐसा भी भरा हुआ होता है, पस्सी टाइप या कीलॉइड टाइप, जिसकी वजह से आपको पैर नीचे रखने में बहुत दर्द होता है। Hi, Khan's Physio. Bade, it's a very long time that I've seen you and I'm having you here. Nice to see you. कैसे हैं आप? मुंबई कैसी है? ओके, सो जैसे कैलस था, कैलस और कॉर्न दोनों का एक ही प्रेजेंटेशन होता है, या एक ही कारण होता है, थिकनिंग ऑफ द स्किन बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेसिकली रॉन्ग फुटवेयर। हैमर और क्लॉटो सेम ही चीज है, दो डिफरेंट नाम है बस। हील पेन। हील पेन बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, इट्स अ जेनेरिक टर्म। हील में दर्द होना मतलब हील पेन होना। वो कभी कभी एक्लीज टेंडन का पेन भी नीचे की तरफ आ रहा होता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और वो ठीक नहीं हुआ, तो लोगों को लगता है अरे ये तो हील पेन है, या रेमिनेंट वहां पे बचा होता है जो लोग ठीक नहीं करवाते, तो ये भी हो जाता है। समटाइम्स हील स्पर, द वेरी नेक्स्ट वन, heel spur meaning calcium deposits over the bone of the heel। जो heel calcaneum जो बोन होती है उसके ऊपर जब कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अगेन फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ ओवर प्रेशर, बिकॉज ऑफ ओवरलोड दैट द plantar fascia causes on the bone। तो plantar fascia जब वैसे प्रेशर की वजह से या रॉन्ग वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो हील पे रब करता है, उसकी वजह से बोन की वेयर एंड टेयर होती है।
और बोन का वेयर एंड टेयर होना मतलब अगर घिस रहा है तो बनेगा भी। ऑल्दो एज के साथ वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, बट जब जब घिसेगा तब तब और बनेगा। अभी बोन को नहीं पता कि इस स्मूथनेस के साथ उसको दोबारा वापस शेप में आना है। इट डजंट नो वेयर एंड हाउ मच टू फॉर्म। सो समटाइम्स देयर इज मोर ग्रोथ। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन एक्सरे। एंड हील्स पर अगर आपको फॉर्म हो जाता है तो ये थोड़ा दुखदाई है, क्योंकि इसके अंदर आपको एंटी इंफ्लामेटरी लेना पड़ेगा। अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, कॉर्टिसोन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे या तो फिर सर्जरी कराना पड़ेगा। तो उतने तक बात न जाने दीजिए। रोज अपने पैर का ख्याल रखिए, मसाज योर फुट, रिलीज द टेंशन ऑफ योर फुट, टेक केयर ऑफ योर फुट, एक्सरसाइज इट, स्ट्रेच इट एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। आज ही काम करना शुरू करें पैरों पे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ingrowing toenail. Abhi, ingrowing toenail is a very common problem that happens in many people because या तो टो नेल ठीक से काटते नहीं है, या टो नेल तो काट दिया बट उसके एजेस नहीं काटे, तो वो जो कॉर्नर्स जो होते हैं वो स्किन के फ्लैश के अंदर घुसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लैश एरिया जो होता है वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत दर्द करता है। तो टेक केयर ऑफ योर फुट। आपसे नहीं होता है, आप पेडिक्योर करवा लीजिए या आप किसी को बुला लीजिए, वो आपका पैर ठीक कर देगा। बट कोशिश करिए खुद ही आप ये सब कर सके, क्योंकि अपना ख्याल तो खुद रखना आना चाहिए ना। मैलेटो। मैलेटो इज अनदर नेम फॉर क्लॉटो और हैमटो। अगेन, क्लॉइंग मीन्स जो आपका फर्स्ट फैलिंग्स है और जो आपका नेक्स्ट फैलिंग्स है उसका जॉइंट हैज बिकम रियली स्टिफ, इट इज नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ इल फिटेड शू। मेटाटार्साल्जिया, तो हम जो अभी तक बॉल ऑफ द टो की बात कर रहे हैं उसके अंदर व्हेन देयर इज inflammation or swelling, because people sometimes like to thump their foot when they walk. So आपने march past देखा होगा, there are people who really put their foot very strongly on the floor. नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो रनिंग के टाइम पे अपने पैर के ऊपर बहुत ज्यादा strongly impact करके और फिर भागते हैं। Why? Because they have no control of their own body when they are running or when they are walking or when they are in motion. So impact का ही प्रॉब्लम है, impact का ही इशू है, जिसकी वजह से you get metatarsalgia. अगर आप इमेज देखें, सेकेंड रो, फोर्थ इमेज from the left और सेकेंड इमेज from the right, metatarsalgia, वो एरिया में पेन आता है. Now how do you cure it? Very first and very important thing is that you need to relieve the tension from there. So get stronger, start exercising. अपना बॉडी का वेट सब पैर पे ही गिराने का जरूरत नहीं है. You need to be able to walk properly, you need to be able to have pressure distribution very well, and you need to wear comfortable shoes. Ill-fitting shoes lead to this problem. आजकल there are so many companies who are making this huge soles in the shoe, almost like a truck tire. So do we need that much support? मतलब where are we exactly going and what are we exactly doing? Glasses पे walk कर रहे हैं क्या, या thorns पे walk कर रहे हैं that we need that much of sole to walk on? Hi Piyush, hi Jyoti, nice to see you guys after a very long time. Good that you guys are here. We are talking about foot pain and its effect on the entire body. Currently, we are talking about common types of foot pain. And we have covered almost 60% of the foot conditions. We are on the metatarsalgia. So, अगर आप अति कर देंगे, if you have gone to the extreme, तो मेटाटार्साल्जिया की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बेड से वॉशरूम तक जाने में भी आपको डिस्कम्फर्ट होगा. एंड यस, आई हैव हैड पेशेंट्स हु नीडेड क्रचेस इन ऑर्डर टू वॉक. फिर वो क्या करते हैं, फिर वो सिलिकॉन पैड्स लाते हैं या इनसोल लगाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा कंफर्ट कर सके. बट मिस्टेक क्या है, शू वैसा ही नैरो पहना है आपने, नीचे बहुत सारा सपोर्ट लगा लिया, तो ऐसे भी आपके पैर को पूरा अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल रहा था. लाइक वी जस्ट सॉ in our previous image, the left image if you see, पहले भी आपके शू को पैर को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अब आपने नीचे भी कुछ
इंसोल लगा दिया है या कुछ सिलिकॉन पैडिंग लगा दी है, जिसकी वजह से नाउ योर फुट डज नॉट हैव ब्रीदिंग over the top also. The mouth, the top part of the shoe is really adhering to the skin of the foot or to the entire foot itself. तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ना फुट के टॉप पार्ट पे बर्निंग सेंसेशन आने लग जाती है. दैट स्टार्ट्स रेडिएटिंग डाउन ओवर द इंटायर लेग. फिर आपको लगता है कि आपकी कमर में प्रॉब्लम है या आपके नी में प्रॉब्लम है. कभी कभी कुछ लोग सही भी गेस कर लेते हैं कि फुट की प्रॉब्लम है और फुट ही हमारा ठीक नहीं हो रहा, तो फुट पे बहुत कुछ कराते रहते हैं. बट फुट सफर कर रहा है इसलिए उस पे प्रॉब्लम है. फुट के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, फुट सफर कर रहा है क्योंकि उसको सांस लेने की जगह नहीं है. सो wear proper shoes. Very first and very important thing. Your half of the problems of foot pain will go if you have the right kind of footwear. And the right side footwear shown is an amazing footwear. Less available in India, but आप इस तरीके के काफी फुटवेयर देख सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा आपको जो सोल ऑफ द फुटवेयर होता है वो थोड़ा सा पैडेड मिलेगा, so that you can walk, but it's very flexible. And ऊपर में आपके फुट को इनफ कंट्रोल है, जहां जहां कंट्रोल आना चाहिए, जहां जहां आपको उसके अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, वो एग्जैक्टली वी शेप में जिस तरीके से उसका स्ट्रैप है उसमें दिखा रखा है. इट्स अ परफेक्टली डिजाइंड footwear that you need while you are treating yourself or making your foot go healthy. Okay, it's my recommendation as well. Otherwise, I can show you something which is my latest buy, and I latest as in 2 साल हो गए, but I'm in love with this. So this is a Vibram or Vibram shoe. If you see, बहुत ज्यादा सोल नहीं है इसमें, बट मैं आराम से दिल्ली में स्टोन्स ग्रैन्यूल्स सबके ऊपर आराम से चल सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती. इट हैज गॉट अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी. भागने में चलने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे से पता लगता है आप क्या कर रहे हो. हर एक टो के अंदर अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी है, विच मीन्स माई फुट इज नॉट suffocating. So make sure whatever footwear you invest in, चाहे आप फिर 15,000 20,000 का जूता ही क्यों ना लाएं, but if you're buying those huge sole based footwear, then I don't know, apart from the footwear company, whom are you benefiting? Make your decision. Whom do you want to benefit? Hi Ankita, nice to see you after a very long time. I hope US is doing well. Okay, we will move on to our next condition, Morton's neuroma. अब आप ध्यान से अगर इमेज पे देखें, I'm sorry, I don't know how to enlarge it over here. Hi Rahul, nice to see you. So second row, last image from the left and first image from the right. Hi Ashish, nice to see you. So Morton's neuroma basically जो nerve होती है foot की, leading to the second and the third and the fourth toe, that gets inflamed. अभी ये क्यों हुआ? जब हील ज्यादा पहनते हैं ना हम, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन कम्स मोर ऑन द टोज, एंड वो ना कि सिर्फ मसल को, ना कि सिर्फ टेंडन्स को, ना कि सिर्फ फैशिया को, बट ऑल्सो नर्व समटाइम्स गेट्स इरिटेटेड, इट गेट्स इन्फ्लेम्ड, और फिर वो दर्द ना हटाना बहुत मुश्किल होता है. Nice to see you too. I not exactly see you, but nice to see you too. So going back to Morton's neuroma, Morton's neuroma में usually आपको constant pain रहता है over the foot. Sometimes it is so bad कि जब आप चल रहे होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था हमारे वॉकिंग फेज में, हील स्ट्राइक होता है जब आपका पैर अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है, देन फुट फ्लैट होता है जब आपका पैर बाहर की तरफ रोटेट हो रहा है, एंड देन यू कम टू टो ऑफ. तो टो ऑफ में मेजरली तो ग्रेट टो ही होता है जो पुश करता है आपके फुट को जब आपको चलना होता है, बट the other toes are also in contact. Let's see that once again. If you see the fourth image, आप देखेंगे toe off के अंदर the ball of the toes are actually on the floor and they are trying to push away. Now जब वहां पे प्रेशर आता है तभी तो आप ग्राउंड क्लियर करेंगे और नेक्स्ट फेज ऑफ वॉकिंग पे जाएंगे, विच इज स्विंग फेज. अभी ये एक स्टेप है. स्टेप का मतलब
एक पाँव जैसे पहले कांटेक्ट में आया तब से लेकर के जब वो हवा में गया ताकि दूसरा पाँव कांटेक्ट में आए। तो एक एक स्टेप के अंदर भी अगर आपका कोई भी मूवमेंट अगर क्लियर नहीं है या पेनफुल है तो उसके वजह से आपकी वॉकिंग सोचिए कितना प्रॉब्लम करेगा। अभी ऐसे लोगों का क्या होता है जो क्योंकि वो ठीक से वॉक नहीं कर पा रहे हैं, दे स्टार्ट लिंपिंग। लिंप करने का मतलब क्या है? दूसरी लेग पे ज्यादा लोड आया, या नी प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा, या हिप प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा, बॉडी ऐसे शिफ्ट हो रही है। इफ यू लीड with this kind of compensation for a very long time, everything starts to get affected. So please make sure that whenever you develop something like this, you visit an expert. Morton neuroma खुद treat ना करें. Try to visit an expert. ICE कर सकते हैं. ICE is one thing that you can all do, but visit an expert. They will help you better. You can go to an orthopedician, you can go to a physical therapist. Both will help you very well. Let's move to our next condition. आज मैं आपको सब तरीके के पैर के दर्द के बारे में बता रही हूँ, तो it is very important that we try and cover as much as possible. Morton's toe. Normally, we are on the third row, first image from the left. So normally Morton's toe बोलते हैं जब आपका सेकेंड टो, ग्रेट टो के या बिग टो के बाद का जो टो होता है वो लंबा हो बिग टो से, उसको मॉर्टन्स टो या मॉर्टन्स फुट बोलते हैं। बट ये एक कंडीशन भी हो सकती है जिसके अंदर अगेन आपका जो सेकेंड टो है उसके बाद का जो मेटाटार्सल एरिया है, जो पैडिंग है, जो बॉल ऑफ द फुट है, वो पेन करने लग जाए। अगेन बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जूता जो खरीदा था उसके अंदर आपका ग्रेट टो तो आराम से आ रहा था, बाकी सारे टो भी आराम से आ रहे थे, लेकिन जो सेकेंड टो था वो इतना लंबा था कि वो फंसने लग गया, फिर वो मुड़ गया, फिर उसके जो बॉल ऑफ द टो था उसका ऊपर ज्यादा लोड आया एंड उसकी वजह से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन गलत होने की वजह से there were a lot of issues. Hosali Vittal, welcome. Nice to see you. Overlapping toes. Overlapping toes, as we all can understand, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है. Ill-fitting shoes. Sometimes it is also because of genetic reasons. So, कुछ लोगों का पैर का जो हड्डी होता है या मसल का जो ओरिएंटेशन होता है वो इस तरीके से ही होता है कि आप उसको बहुत कुछ चेंजेस में नहीं ला सकते हैं। बट I would say still there is no harm in conditioning your foot. There is no harm in treating yourself. So exercise, train, stretch, and take care of your foot. Overpronation. Overpronation का मतलब होता है प्रोनेट करना, और सुपिनेट करना मतलब रोटेट करना। बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ अगर आपका फुट रोटेट कर रहा है, मतलब आपका फुट का सोल आपकी तरफ आ रहा है जब आप देखते हैं, तो उसको सुपिनेशन बोलते हैं। और बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, सोल आपसे दूर जा रहा है, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, उसको प्रोनेशन बोलते हैं। तो थोड़ा हर एक के में होता है और ये जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो जैसे हमने सीखा था वॉकिंग के अंदर, वो पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर ये ज्यादा हो तो आपका जो अंदर वाला आर्च है पैर का, जो ऐसे आपको आर्च दिखाई देता है, वो गिर जाएगा। इसको फ्लैट फुट या फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट भी बोलते हैं। तो इसका प्रॉब्लम बहुत तरीके से सिर्फ तब फेस करता है कोई भी जब सिम्टोमेटिक होता है। फ्लैट फुट पर से इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट फ्लैट फुट इफ कॉजेज यू एक्स एंड पेन्स, आपको थकान ज्यादा हो रही है, आपके काफ में, आपके लेग में दर्द बहुत रहता है, फुट में पेन, बर्निंग सेंसेशन रहती है, तो फ्लैट फुट इज ट्रबलिंग यू एंड प्लीज सी योर फिजिकल थेरेपिस्ट टू गेट इट ट्रीटेड। और एक्सरसाइज, बट थ्रू अ फिजिकल थेरेपिस्ट। खुद से करेंगे तो शायद दर्द बढ़ा लेंगे, तो पहले दर्द को ठीक करें फिर एक्सरसाइज करें। आई ऑलवेज टीच एंड टेल एवरीवन कि पेन जब है तब एक्सरसाइज मत शुरू करो, पेन अवॉइड करने के लिए एक्सरसाइज करो, या फिर अगर पेन है तो मीट योर फिजिकल थेरेपिस्ट एंड लर्न व्हाट यू कैन डू टू हैंडल द पेन बेटर। ओके, hi Sukhi, nice to see you after a very long time. I hope you are moving and you are making people move very well. Nice to see you join this foot pain live that we are doing. Hope you also benefit from it. Plantar fasciitis, जैसा हमने
पहले डिस्कस किया था, प्लांटार फेशिया इज द लाइनिंग ओवर द सोल ऑफ द फुट। हील से लेकर के टोज तक कनेक्ट होने वाले फेशिया को प्लांटार, पैर के नीचे वाले पार्ट को प्लांटार बोलते हैं, और फैशिया मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है हील से लेकर के टो को ज्वाइंट करते हुए। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाया यहाँ पे नाम रखने के लिए, कोई फैंसी नाम नहीं है, बट फेशियाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन है, हो सकता है स्वेलिंग भी हो। आइटिस जहां पे भी होगा मतलब इन्फ्लेमेशन है। तो जब वो स्वेल कर जाता है, क्यों कर रहा है स्वेल? अगेन ओवर यूज, अगेन रॉन्ग फुटवेयर, अगेन you have not been taking care of your foot. You have been abusive, if I may say, to your foot. Don't do that. अरे सुखी जी, if you have pain in your heel, then ये वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगी. Please watch this as much in detail as possible and hope that you can benefit with it. So बाकी दोनों पोस्टिबियल टेंडनाइटिस एंड सेसेमोडाइटिस, ये दोनों टेंडन्स का इश्यू है, जिसके अंदर टेंडन आपका जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है, या सेसेमोडाइटिस इज सेसेमोइड अ बोन विच इज प्लेस्ड अंडर द टेंडन ऑफ अ मसल, और वहां पे ड्यू टू ओवर प्रेशर एंड फ्रिक्शन उसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन होती है. तो अगेन गोइंग बैक टू द इशू, जितना भी आप बुरा फुटवेयर पहनेंगे, जितना भी आप ओवर स्ट्रेन करेंगे या ओवर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, या आपका फुट का जो आपने कंडीशनिंग किया है वो इस तरीके से है कि फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा जा रहा है या इनफ्लेम बहुत ज्यादा हो रहा है, खुल नहीं पा रहा, यूज नहीं हो रहा, तो आपको पेन आएगा. और इनमें से कोई भी चीज डेवलप हो सकती है. Now, what is the clever thing to do over here? Hi, Lakshita. Nice to see you again. So I'm going to teach you a few exercises that you can do for your foot conditioning. But a few things to tell you before. Very first, make sure that your foot is not specifically in pain. कहीं पे भी किसी एक पॉइंट या कुछ पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा पेन नहीं हो, तब आप ये सब एक्सरसाइजेस करिएगा. इट इज जस्ट ऑन टू बी ऑन द सेफर साइड. अच्छा है कि आप अगर पेन है तो अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से मिलें या मेरे से सेशन लें, एंड वी कैन थिंक अबाउट हाउ वी रिजॉल्व योर पेन टुगेदर. ठीक है, पेन के अंदर नहीं करना है एक्सरसाइज, स्पेशली अगर हम लोग ये सोचे कि 100% लेट्स से आपके अगर पेन का सीलिंग मानते हैं तो आपका 50% से कम पेन होना चाहिए. 100% मतलब इतना है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, चल नहीं सकते, पैर नीचे नहीं रख सकते. ठीक है, तो 50% से कम ही होना चाहिए पेन, तभी आप ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें. अदरवाइज स्ट्रिक्ट एडवाइस फॉर यू टू गो टू योर फिजिकल थेरेपिस्ट और पोडाइट्रिस्ट or orthopedician. Okay? With me? Let's learn the exercises. Now, very first thing that I will tell you is stretch. Now, can you see how this person has webbed his finger into each toe? So, इसको कहते हैं manual toe separation बनाना. टोज के बीच में एक एक फिंगर ऐसे करके अच्छे से, अगर नहीं जा पा रहा है तो स्ट्रेच करिए टोज को और उसके अंदर फिर फिंगर प्लेस करिए, ऐसे अच्छे से करिए और उसको ग्रिप करके अच्छे से पकड़िए. टोज तो नहीं पकड़ी जाएंगी बट हाथ से तो पकड़ सकते हैं. और फिर फुट को अंदर बाहर स्लोली मूव करिए फॉर 60 seconds. यू विल थैंक मी लेटर. Next. You can see this. Now you stabilize yourself or sit in such a position कि आप एक एक टो को इंडिविजुअली आगे पीछे करके अच्छे से फुल स्ट्रेच कर सकते हैं. कीप गोइंग टू इंडिविजुअल टोज. आगे पीछे हर एक टो को करना है, ऐसा नहीं इसको पीछे किया इसको आगे किया, ऐसे नहीं. हर एक टो को पूरा आगे से पीछे करेंगे टू द मैक्सिमम रेंज. टेढ़ा नहीं करना, रोटेट नहीं करना. ट्राई करिएगा बिल्कुल सीधा रखें और फिर उसको स्ट्रेच करें. मेक श्योर आपका हील जो है वो रेस्टेड हो और आपका नी जैसे ये बैठा है एज क्लोज टू योर चेस्ट एज पॉसिबल व्हाइल यू आर डूइंग इट. अगर ये नहीं होता है तो
नी को अपने लैप के ऊपर ऐसे फोल्ड करके रखिए और फिर दोनों हाथों से मूवमेंट करिए, जैसे आई एम सिटिंग राइट नाउ। कैन यू सी? एंड देन यू डू। ओके? It is very important that your back is aligned, that your leg is stable yet relaxed when you do this. Hi Priyanka Arora, nice to see you. Next exercise. So यहाँ पे हम plantar fascia को stretch कर रहे हैं. So जो toes है उसको ground पे, toe का जो back part है उसको हम ग्राउंड पे रखेंगे और पूरे एंकल को आगे की तरफ बेंड करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको सोल ऑफ द फुट पे अच्छे से स्ट्रेच आएगा। ओके, नेक्स्ट, जो फ्रंट पार्ट है टो का उसको हम फ्लोर पे लगाएंगे एंड देन वील ट्राई टू पुश द एंकल फॉरवर्ड। मेक श्योर दैट यू हैव समथिंग इन फ्रंट टू होल्ड। कुछ पकड़ करके फिर ये करिएगा। वी डोंट हैव टू डू एवरीथिंग इन वन गो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ करने से आपको पैर में थोड़ा थकान फील हो या ऐसा फील हो कि बहुत ही नया कुछ कर लिया तो स्प्रेन भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा क्रैम्प भी आ सकता है, तो उसको पहले सेटल होने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करने का ट्राई करेंगे। नहीं तो वहीं पे ही छोड़ दीजिए आज के लिए, कल ट्राई कर लेना। ओके, डोंट डू एवरीथिंग इन वन गो। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, बट बहुत सुंदर बना था, तो इसलिए अगर आपको अपने पांव सुंदर चाहिए तो टाइम इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ ये सब थी स्ट्रेचेस। अब हम करेंगे रिलीजेस। दिस इज माय फेवरेट। तो एक टेनिस बॉल या एक गोल्फ बॉल, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। टेनिस बॉल थोड़ा सा सॉफ्टर रहेगा, गोल्फ बॉल थोड़ा सा हार्ड रहेगा। मेरा सजेशन होगा सॉफ्ट बॉल से स्टार्ट करें पहले, कि आप उसको पैर के बीच में रखें and then slide it forward, backward, side to side, 60 seconds in each direction। और पूरा जो आपका टोस छोड़ करके जो आपका पूरा पैर का जो भी एरिया है सब जगह पे अच्छे से with mild to moderate pressure exerted by the foot or by you over the ball, आप अच्छे से उसको रिलीज करें। तो कैसे करेंगे? आराम से बैठिए, पैर अपना नीचे हैंग करिए, बॉल रखिए, बॉल के ऊपर पैर रखिए और आप धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते रहिए और बॉल को रब करते रहिए, आगे पीछे, फिर साइड टू साइड। पूरे पैर को कवर करना है, आगे पीछे, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। कीप गोइंग इन वन लेयर, फिर देन साइड टू साइड, हील से स्टार्ट करिए और ऊपर जाते रहिए टू द फुट, टू द टोज ऑफ द फुट। वेरी गुड। नेक्स्ट। ओके, आई होप यू कैन सी दिस। सो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने टोज से ऐसे क्रॉल करके टॉवल को कर्ल करके अपने पास पुल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन डू इन ऑर्डर टू ट्रेन योर टोज फॉर बेटर स्ट्रेंथ। लेट्स लर्न वन मोर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, शी इज ट्राइंग टू डू अ फुल सर्कल ऑफ द मूवमेंट। हील स्ट्राइक किया, फिर पूरा पैर नीचे लाया, फिर टोज पे गए, टोज से आपने पूरा पैर उठाया, कर्ल किया और फिर हील लाया। अभी जितना मूवमेंट हाथ से हो पाता है उतना मूवमेंट फुट से नहीं होता है, बट ट्राई। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम पैर की बोन्स को हम बहुत अच्छे से नहीं जानते। हमने जैसे डिस्कस किया कि 28 बोन्स हैं, इतने सारे जॉइंट्स है, ये सारे मसल्स है, सब कुछ है, बट बोन्स बहुत सारी हैं। सो और हर बोन आपस में, जैसे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट में कैसे लंबा लंबा कैसे अलाइंड है और कैसे जुड़ी हुई है। मेक श्योर दैट यू मेंटेन द लेंथ ऑफ द फुट, मेक श्योर दैट यू मेंटेन द विड्थ ऑफ द फुट। तो कंप्रेस्ड जितना भी आप पहनेंगे शू या फुटवेयर, उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा। मेक श्योर दैट यू वेयर समथिंग दैट इज इजी फॉर यू टू
breathe or let your foot breathe in. High heeled shoes, fancy shoes, आप जब भी पहनते हैं आप अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं. सो बाकी आपके ऊपर है कि व्हाट यू लाइक व्हाट यू डिसलाइक. मेरा फेवरेट पार्ट जो मैं हमेशा पसंद करती हूँ लोगों को बताना, मिथ्स. सो बहुत सारे मिथ्स मैंने आपको आज तक बस्ट किए हैं आप लोगों के लिए. वी आर गोइंग टू डू अ फ्यू मोर myth busting. Okay, very first one is you need arch support. So जब आप कभी भी डायग्नोस किए जाते हैं कि आपके आर्चेस, जैसे हमने आज पढ़ा साथ में कि मीडियल आर्च भी होता है, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च भी होता है और ट्रांसवर्स आर्च भी होता है. तो ये आर्चेस जब बोन की अलाइनमेंट या आर्चेस जब ठीक काम नहीं कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, सिलिकॉन के या हार्ड जो सोल बना होता है उसके आर्च सपोर्ट मार्केट में बहुत बिकता है और लोग ये आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं. नाउ अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या अगर आपका जो फुट है वो बहुत ही ज्यादा पेन कर रहा है, इनिशियली आप वो शायद पहन सकते हैं ताकि आपके पैर में थोड़ा सा आराम आए, बट उसकी आपको जरूरत नहीं है. अगर आप एक्सरसाइज करें, अगर आप फुट को स्ट्रेच करें, अगर आप फुट मसल्स को रिलीज करें और आप अपनी फुट कंडीशनिंग पे ध्यान दें, एंड यू मीट योर फिजिकल थेरेपिस्ट टू नो एंड लर्न व्हाट यू नीड टू डू, देन you don't need arches. It's a myth. Don't go barefoot. इसके लिए मैं इतना प्रोफेस कर चुकी हूँ और इतना लोगों से बात करती हूँ कि अब शायद मजा आता है बिकॉज पीपल आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड, रियलाइज एंड दे आर डूइंग इट. सो एक्सपीरियंस इट, दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से. नंगे पांव चलना भी जरूरी है ताकि आपका पैर जागे, उसको पता लगे कि वो कर क्या रहा है. इतने मोटे मोटे या इतने एबनॉर्मल शू सोल्स पहन करके हमारा फुट का जो मसल्स है या फुट का जो ब्रीदेबिलिटी है वो एकदम खत्म हो गया है. सो बी एज कंफर्टेबल इन द फुट एज पॉसिबल, एज इन द शू एज पॉसिबल, बट गो बेयरफुट. अगर ऐसे फ्लोर पे चलना पसंद नहीं है तो कारपेट लगा के चलो, गार्डन में वॉक कर लो, बट वॉक बेयरफुट. फुट पेन अगर करता है तो नंगे पांव मत चलो. पहले पेन सबसाइड होने दो फिर चल लेना. थर्ड मिथ. नहीं, फुट पेन कभी कभी रिजॉल्व हो जाएगा अगर आप नंगे पांव चलेंगे तो, क्योंकि आपकी मसल्स यूज होंगी, जो मूवमेंट जो चाहिए थी वो आ जाएगी वापस, एंड यू माइट गेट रिलीव्ड ऑफ द फुट पेन. अनलेस यू हैव हील स्पर, बोनी स्पर, बोन की आउटग्रोथ है अगर, उसके अलावा बाकी सब में चांसेस हैं दैट यू माइट फील बेटर. पहले थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि मेहनत हो रही है, काम हो रहा है, बट उसके बाद ठीक हो जाएगा. हाय आशीष, नाइस टू सी यू. ओके, फुट पेन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग. जैसे जैसे आप एज में बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आपका फुट में पेन आना लाजमी है. नो, नॉट नेसेसरी. देयर आर मेनी पीपल जिनका जो 80s 90s तक पहुंच गए हैं एंड दे डोंट हैव फुट पेन. व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपनी फुट की कंडीशनिंग पे ध्यान दिया, वो अपने फुट को हेल्दी रखते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं. एंड आई थिंक हमसे जो सीनियर लोग हैं उन लोगों को ये ज्यादा अच्छे से पता था दैट द मोर यू यूज, not overuse, the more you use the more you can preserve. So be thoughtful, be smart. What is used for you and what is overuse for you. मेरा यूज आपका overuse हो सकता है, आपका यूज मेरा overuse हो सकता है. So कुछ एक फॉर्मूला नहीं काम करेगा. Assess और get yourself assessed. क्या आपको करना चाहिए, कितना आपको करना चाहिए. That's why physical therapist is important. एंकल सपोर्ट जरूरी होता है हाइक के लिए, ट्रैक के लिए जाने के लिए नहीं. अगर आपने अपने फुट को या अपने एंकल को अच्छे से ट्रेन किया है, खुद को अच्छे से ट्रेन किया है, जो कि आजकल सब हाइकर्स या ट्रैकर्स बताते हैं कि आपको ट्रेनिंग करना जरूरी है बिफोर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ हाइकिंग और ट्रैकिंग. अगर आपने वो किया है तो आपकी बॉडी, आपका एंकल खुद को सपोर्ट कर सकता है. आपको शू के रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है. नहीं तो क्या होगा, आपका पैर इधर उधर गिर रहा होगा, शू उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, बॉडी बैलेंस कर नहीं पाएगी और शायद आप खुद गिरे. सो माय एडवाइस इज ट्रेन बेटर बिफोर यू गो फॉर ट्रेकिंग और हाइकिंग. अदरवाइज सपोर्ट तो फिर चाहिए ही होगा, फिर स्टिक भी चाहिए होगी, फिर सपोर्ट भी चाहिए होगा, फिर सब कुछ चाहिए होगा. ऑर्थोटिक फॉर फुट पेन, किसी भी तरीके का फुट ऑर्थोटिक मतलब कुछ
फुट का आपको आपने अलग से कुछ एडिशनल पहना है जो आपके पैर को फुट पेन से बचा सकता है, चाहे फिर वो फुट ब्रेस हो, चाहे फिर वो आर्च सपोर्ट हो, कुछ मर्जी हो, उसका आपको जरूरत नहीं है। अच्छी बात है अगर आप जस्ट फैंसी के लिए अगर आप वो पहनना चाहते हैं तो इफ यू लाइक इट सो मच, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी आपको, अनलेस आप बहुत दर्द में हैं और इमीडिएट आपके पास कुछ काम है और आपको वो करना बहुत जरूरी है। Otherwise, please make sure that you are using your foot or you are training your foot enough so that it is ready to take your own body weight. अगर आप अपराइट है, अगर आपकी पूरी बॉडी को फंक्शनल रहना है, तो पैरों को भी रेडी रहना है। योर फीट नीड्स टू बी रेडी इन ऑर्डर फॉर यू टू मूव, इन ऑर्डर फॉर योर बॉडी टू ट्रांसफर द वेट टू द ग्राउंड। ओके, bunions are genetic. Hi Aishnish Kalra, nice to see you here. Bunions are not genetic. Well, some percent I can say, some studies have proved that they are genetic, but not 100%. So don't worry, and you can always work on bunions. You can train your muscles, you can train your foot, you can release the muscles, and you can try to get them back to normal. If you focus, you can do it. Make sure that you try. हाई हील्स या हील सपोर्ट की जरूरत होती है व्हेन यू बाय अ शू? नो, नॉट एट ऑल, 100% नो। आपको जरूरत नहीं है, आपकी हील पे इनफ पैडिंग है, यू डोंट नीड इट। इफ यू हैव बिकम सो कंफर्टेबल, अगर आपने अपने फुट को इतना स्पॉइल कर दिया है, नाउ इज द टाइम टू वेक अप एंड स्टॉप डूइंग इट। ओके, अगेन, लिविंग इन इंडिया, लिविंग इन दिल्ली, जहाँ पे स्ट्रीट्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती हैं, जहाँ पे यू हैव अ लॉट ऑफ garbage, especially glass bottles which are broken and on the street. I know this because my dog was injured. मेरे dog, मेरे pet के पैर में कांच घुस गया था, जिसकी वजह से उसको सर्जरी करवाना पड़ा, और आज भी उसका हाइंड क्लॉ जो है वो ठीक से नहीं खुल पाता है, वो रन नहीं कर पाता है बहुत अच्छे से, और वॉकिंग में भी कभी कभी उसको दिक्कत होती है, बट he's still okay. It's a message from my side to all those who are listening to this. अगर आप देखें कहीं कांच अगर पड़ा हुआ है तो उसको प्लीज मट्टी में अच्छे से दबा दें, ढकिएगा मत, क्योंकि नहीं पता लगता है कांच है अंदर, जैसे लोग सूखे पत्तों के बीच में दबा देते हैं, वैसा मत करिएगा। डोंट कवर इट विद एनी काइंड ऑफ थिंग विच कैन हार्म वंस imposed with pressure on top. ठीक है, कपड़े से मत ढकिए, पत्तों से मत ढकिए, किसी चीज के बस अंदर मत करिए, मट्टी में गाड़ दीजिए, पुट इट अंडर द मड so that nobody gets hurt, and put it properly so that nothing hampers. नहीं तो उठाइए उसको और फेंक दीजिए, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए हाथ गंदा होगा, you can go and wash it or wear gloves and then you do it. I don't want you to do it with bare hands. ऐसे बिल्कुल खाली हाथ से मत करिएगा. मेक श्योर दैट यू यूज समथिंग व्हेन यू थ्रो इट, बट लाइक आई टेक केयर अबाउट माई डॉग, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो. जब मैं बेयर फुट इतना प्रोफेस करती हूँ या कम सोल के शू को इतना प्रोफेस करती हूँ, देख करके चलो. वो शायद नहीं कर पाया उसके केस में, मैं इसलिए नहीं कर पाई बिकॉज पत्तों के अंदर ढका हुआ था वो ग्लास, तो पता भी नहीं लगा कि कैसे उसको लगी. बट you can see, you can be where you can make sure that it doesn't harm you. So all the very best, and let's try and work our feet, keep it healthy, and walk till the end of our life. All the very best.